اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا. وہ اپنی مرضی سے گئی تھی, اپنی مرضی سے واپس آئی ہے. نہ میں نے اسے جانے پر روکا تھا اور نہ میں اسے آنے پر روک سکتا ہوں. شابیر, تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ لڑکی مجھے میری زندگی میں برداشت نہیں ہے. آواز نیچے نیچے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی؟ ایمان, تم کب آئی؟ کل رات میں ہی آئی ہوں. موقع ہی نہیں ملا کسی سے ملنے کا. بھابھی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک. جلدی میں ہوں, آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں. رات میں آ کے آرام سے بات کرتی ہوں. کیا لینے آئی اب؟ یہ ایمان منحوس واپس کیوں آ گئی؟ مجھے کیا پتا. مجھے کچھ گڑبڑ لگ. اماں, میں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں, مزید میرے دل میں وسوسے نہ ڈالو یار. ایک بڑا ہاتھ مارتے ہیں, میں تو کہتی ہوں, اور یہاں سے نکل چلتے ہیں. اماں, تو اور کیا کروں میں؟ تجھے کچھ اور کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ کب تک کب تک تو خود بھی بھاگتی رہے گی اور مجھے بھی اپنے ساتھ بھگاتی رہے گی. ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ چل بڑا ہاتھ مار کر نکل چلو. دیکھ, کوئی اور طریقہ ہے تیرے پاس؟ ایمان واپس آ گئی ہے, اس کی اور شابیر کی محبت بڑھ سکتی ہے. اب دیکھو نا, یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے. اس نے آتے ہی شابیر کے لیے ناشتہ بھی بنا لیا. اور شابیر, اماں تجھے پتا ہے جب وہ کمرے میں آیا تھا, اس کا لہجہ اور اس کی نظریں, ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کچا چبا جائے گا. تو خود بتانا میں کیا کروں؟ یہی تو میں تجھے سمجھا رہی ہوں. تیرا دماغ تو ان معاملوں میں بہت چلتا ہے. تو بتا نا, اس ایمان کی بچی کو اس گھر سے کیسے نکالیں؟ فکر نہ کر بیٹ, تو فکر نہ کر. دیکھ اب میں کیا کرتی ہوں. اس نے تو تماشا لگا کے رکھ لیا. جب دل چاہتا ہے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, جب دل چاہتا ہے واپس آ جاتی ہے. شادی جیسے مقدس رشتے کو انہوں نے مذاق بنا لیے. تم کیسی باتیں کر رہی؟ تو اور کیا, یہ صرف ایمان کی بات نہیں ہے. جیسی وہ ہے نا, ویسی اس کی بہن مسکان بھی ہوگی. اسی لیے میں راہم اور مسکان کے رشتے کے خلاف ہوں. اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ راہم مسکان کے چکر میں پڑا رہے اور اپنی زندگی کا بھی وہی حال کرے, وہی تماشے لگائے جیسے یہ ایمان نے لگائے. پھر رشتوں کی اہمیت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہاں, تم گئی نہیں؟ جلد بازی میں کار کی اسکول گئی تھی. تم نے گاڑی لے لی؟ آفس کی طرف سے یہ لیا. جی. ریبا, کنگریچولیشنز. یہ سب تمہاری محنت اور لگن کا صلہ ہے, ورنہ کوئی بھی آفس ایسے گاڑی دیتا نہیں. یہ تم دیکھ رہی ہو نا, جی. یہ اس کی کامیابی ہے.
ये उसकी मेहनत है होती रहे कामयाब, मुझे क्या। और ये उसकी हकीकत है। उसकी मां शाहवीर को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर तुम न होती तो वो खुद को कभी संभाल न पाता। फिर उसने आह भरी, जैसे वो है वैसी ही उसकी बहन भी होगी। उसी लिए मैं राहिम और मुस्कान के रिश्ते के खिलाफ हूँ। ईमान ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला कर लिया, अपनी माँ के समझाने पर वो ससुराल तो वापस चली जाएगी, मगर वहां पहुंचकर शाहवीर की हरकतें देखकर उसका दिल टूट कर रह जाएगा। शाहवीर जिस तरह मारोश के नुखरे उठा रहा होगा, वो सब ईमान के लिए जहर कातिल बन जाएगा। इधर मारोश और उसकी माँ में भी सख्त लड़ाई होगी। मारोश की माँ की ख्वाहिश है कि शाहवीर का पूरा सामान उठाकर फौरन इस घर से निकला जाए, मगर मारोश बज़द होगी कि बार बार ठिकाना बदलना ठीक नहीं, उसे उसी घर में रहना चाहिए। दूसरी तरफ आसिफ साहब और अंबर की मेहनत रंग लाएगी। इनका कारोबार तेजी से चमक उठेगा और उस कामयाबी का सारा सहरा अंबर के सर जाएगा, जिसने दिन रात मेहनत करके घर की तकदीर बदल कर रख दी होगी। ईमान जब ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसके कदम खुद बखुद लड़खड़ा गए। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे वो जानती हो कि अंदर दाखिल होते ही उसे वो मंजर देखने को मिलेगा जो उसका दिल चेयर कर रख देगा। जैसे ही वो अंदर गई, इसकी नज़र सीधी शाहवीर पर पड़ी, जो मारोश की मामूली सी बात पर भी उसकी तारीफें करते नहीं थक रहा था। मारोश नुखरे से कभी दुपट्टा संभालती, कभी मसनूई मुस्कुराहट के साथ बात करती, और शाहवीर उसके हर अंदाज पर फदा होकर रह जाता। ये सब देखकर ईमान की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मौजूदगी की कोई अहमियत ही न रही हो, जैसे वो एक गैर हो जिसे इस घर में बस बर्दाश्त किया जा रहा है। ईमान ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर मारोश की माँ की ऊंची आवाज़ उसे चौंका गई। वो शदीद गुस्से में मारोश से कह रही थी, मैं कहती हूँ अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलने की बात करो। ये घर तुम्हारे काबिल नहीं, ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं। मारोश अपनी माँ के सख्त लहजे से तंग आ चुकी थी। वो रूहान सी होकर बोली, हिमी, बार बार ठिकाना बदलना ठीक नहीं होता। लोग क्या कहेंगे? और फिर शाहवीर भी यही चाहता है कि हम यहीं रहें। दोनों माँ बेटी की बहस इतनी बढ़ गई कि घर के बड़े भी परेशान हो गए। ईमान ये सब देखकर सोचने लगी कि ये घर, ये रिश्ते और ये तलखियाँ, आखिर उस सब में उसका अपना मकाम क्या है। इधर दूसरी तरफ आसिफ साहब के घर में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंबर दिन रात मेहनत करके कारोबार को इस मकाम तक ले आई थी कि लोग हैरान रह गए थे। हर नया दिन नए आर्डर, नए क्लाइंट्स, नई तरक्की लेकर आता था। आसिफ साहब फख्र से कहते नहीं थकते थे कि ये सब अनबर की जहानत और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है। अनबर ने न सिर्फ घर को सहारा दिया था, बल्कि उसे नई जिंदगी बख्शी थी। अब लोग उनके कारोबार का हवाला देकर दूसरों को मिसालें देते थे। इनकी कामयाबी देखकर यूं महसूस होता था जैसे जिंदगी का मुश्किल तरीन मोड़ आखिरकार आसानी की तरफ मड़ गया हो। ईमान, शाहवीर की बेरकी, मारोश का रौब और अपने बिखरते हुए रिश्ते के बीच एक बार फिर सोच की वादी में खाओ गई कि आया उसकी बर्दाश्त, उसकी कुर्बानियां कभी किसी के दिल में जगह बना भी पाएंगी या नहीं। ईमान रात को अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर के हंगामे और बहस ओ तिकरार की ईमान ने पूरा दिन खुद को कामों में अलझा कर रखने की कोशिश की, मगर हर गुजरता लम्हा उसके अंदर एक नई तकलीफ जगा जाता। शाम को जब वो सहन में कपड़े सखा रही थी तो उसे बावर्ची खाने से मारोश और उसकी माँ की सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थीं। मारोश की माँ गुस्से से भरी आवाज़ में कह रही थी, ये घर हमें कभी कबूल नहीं करेगा, और जो लड़की पहले से यहाँ मौजूद है वो तो तुम्हारे रिश्ते को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तुम इस घर में रहोगी तो तुम्हें ही नीचा दिखाया जाएगा। मारोश थोड़ा डरी हुई आवाज़ में बोली, अमी शाहवीर मुझ पर एतबार करता है, वो मेरा साथ देगा। इस पर उसकी माँ तंजिया हंसी, शाहवीर, बेटा मर्दों का एतबार बहुत कम वक्त तक रहता है। कल को अगर ईमान ने कुछ चाल चल दी तो तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये घर हमें कबूल ही नहीं करेगा। ईमान ने दरवाजे के पीछे खड़े ये सब सुना तो उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो किसी की जगह लेने नहीं आई थी, उसने कभी किसी का हक नहीं छीना था, मगर फिर भी उसे हर जाविये से इल्ज़ाम ही मिल रहा था। उसे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि इस घर की दीवारें उसके लिए तंग होती जा रही हैं। रात होने तक घर में फजा और भी कशीदा हो गई। शाहवीर थक्का हारा घर पहुंचा, मगर ईमान के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला,
न सलाम, न खैर खबर, न कोई नजर करम, बल्कि सीधा मारुश के पास जाकर बैठ गया, जैसे वही उसके दिन की थकन का वाहिद सहारा हो। ईमान ने ये मंजर दरवाजे की ओट से देखा तो उसकी आंखों में खामोश आंसू बहने लगे। उसने सोचा था कि शायद आज शाहवीर उसके पास बैठे, उसका हाल पूछे, उसके दर्द को समझे, मगर हकीकत हमेशा उसकी उम्मीदों की अलट ही आई। ये सब देखकर सास ने पहली बार ईमान के चेहरे की थकान महसूस की। वो आहिस्ता से उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन हर रिश्ता आजमाइशों से गुजरता है। कभी कभी इंसान को सब्र भी वो नभवाना पड़ता है जिसका बदला दुनिया नहीं वक्त देता है। इनके अल्फाज नरम जरूर थे, मगर ईमान की जख्मी हालत पर मरहम बनने के बावजूद उसके अंदर के तूफान को रोक न सके। इधर आसिफ साहब के घर में एक नई खुशखबरी की लहर दौड़ी। अनबर के प्रोजेक्ट को एक बड़ी कंपनी ने खरीदने की पेशकश की थी। घर में जश्न का सा समा था। अनबर की मां ने आंसू साफ करते हुए कहा, बेटी, तुमने उस घर को न सिर्फ संभाला है बल्कि इज्जत भी दी है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत यूं ही रंग लाता रखे। आसिफ साहिब ने फख्र से सिर हिलाते हुए कहा, अंबर ने साबित कर दिया है कि औरत अगर चाहे तो सिर्फ घर नहीं, तकदीरें भी बदल सकती है। इस खुशी और रौनक के बिल्कुल बरक्स ईमान की जिंदगी हर लम्हा बिखरती नजर आ रही थी। उसने पहली बार खुद से ये सवाल किया कि आखिर उसे कब वो मकाम मिलेगा जिसकी वह हकदार है। क्या उसे हमेशा यूं ही टौटते रिश्तों और बेहसी के साए में जीना होगा? उसका दिल कह रहा था, शायद बहुत जल्द एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अगली सुबह ईमान बहुत खामोशी से फजर के बाद जाग गई। घर अभी सोया हुआ था, मगर कुंधों पर बोझ ऐसा था जैसे पूरी रात किसी ने उसके दिल पर पत्थर रखे हों। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन में गई, चाय बनाई, मगर खुद एक घूंट भी न पी सकी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वो रो पड़ेगी, मगर उसने अपने आंसू अंदर ही कैद कर लिए, जैसे हर रोज करती आई थी। उसी दौरान सास किचन में दाखिल हुए। उन्होंने ईमान को देखा तो परेशानी उनके चेहरे पर वाज़ेह थी। अगले चंद दिनों में घर का माहौल मजीद तनाव का शिकार होता गया। शाहवीर का रवैया ईमान के लिए हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा सर्द और गैर महसूस होता जा रहा था। वो सुबह घर से ऐसे निकलता जैसे उस घर में कोई उसका मुंतजर ही न हो, और रात को लौटकर सीधा मारोश के पास जा बैठता। ईमान कमरे की दहलीज से उसकी पश्त देखती रहती, मगर उसकी तरफ मड़कर देखना तो दौर। शाहवीर के अंदाज में एक मामूली सी नरमी भी बाकी न रही थी। ईमान को यूं लगने लगा जैसे उसका वजूद उस घर के नक्शे में एक धंधला सा निशान बनकर रह गया है। एक दिन शाम के वक्त मारोश की मां ने सारी हदें पार कर दें। वो बराह रास्त ईमान के कमरे के बाहर आकर जोर जोर से बोलने लगी, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? ये घर हमारी वजह से टूट रहा है, और वजह कौन है? ये लड़की। उसकी मौजूदगी ना हो तो सब मसले खत्म हो जाएं। ईमान ने ये अल्फाज सुने तो उसकी टांगें कांप गईं। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके वजूद को किसी ने चीर कर रख दिया हो। शाहवीर बाहर आया तो इसने अपनी माँ से कुछ कहने के बजाय ईमान को ही घूर कर देखा, जैसे सारी खराबी की जड़ वही हो। उसने सख्त लहजे में कहा, ईमान, तुमने फिर क्या कहा है मारोश की अम्मी को? आखिर तुम हर बात में मसला क्यों पैदा कर देती हो? ईमान ने हैरानी से कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि। मगर शाहवीर ने उसकी बात सुनी तक नहीं और गुस्से में वापस पलट गया। ईमान की जबान पर हर्फ काट दिया गया, जैसे उसकी आवाज उस घर में अहमियत खो चुकी हो। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके, ईमान अकेली सहन में खड़ी खामोशी में गुम थी। आसमान पर हल्की बदली थी, मगर चांद की रोशनी ने उसकी आंखों के आनिसों को चमका दिया था। उसे लगा जैसे पूरी कायनात उसकी बेबसी देख रही हो। वो सोचने लगी, क्या मेरी मोहब्बत वाकई इतनी कमजोर थी? क्या मैं उसके लिए अब कोई मानी नहीं रखती? या ये घर ही मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं? इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई ईमान को अचानक सास की आवाज सुनाई दी। वो आहिस्तगी से उसके पास आकर बैठ गए। बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख पहुंच रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मगर कभी कभी रिश्ते टूटने से पहले आखिरी चीखें मारते हैं। जरूरी नहीं कि अंजाम बराई हो। शायद इस सब में कोई भलाई छिपी हो। शायद कोई इम्तिहान तुम्हें मजबूत बना रहा है। ईमान ने अपने आंसू जब्त करते हुए सर झुका दिया। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं जितनी बार संभलने की कोशिश करती हूँ, हालात मुझे फिर से गिरा देते हैं। मैं अब चीख भी नहीं सकती, बस अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा,
अगर एक दिन तुम्हें लगे कि ये घर तुम्हें निगल रहा है तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। ये अल्फाज ईमान के दिल पर मिरहम जरूर रख गए, लेकिन अंदर का जख्म अभी भी ताज़ा था। दूसरी तरफ आसिफ साहिब के घर में मजीद कामयाबियों की खबरें आ रही थीं। अनबर के प्रोजेक्ट ने इतनी मकबूलियत हासिल कर ली थी कि लोगों ने उसे शहरत के लिए इंटरव्यूज़ तक की पेशकश कर दी। घर में खुशियां जैसे बारिश की तरह बरस रही थीं। आसिफ साहिब फख्र से हर तरफ कहते, अनबर की मेहनत ने हमें उस मकाम तक पहुंचाया है जिसका हमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। इनकी दुनिया रोशन हो रही थी, मगर ईमान की दुनिया हर दिन मजीद अंधेरे में डूब रही थी। इस रात ईमान ने पहली बार अपने इंद्र की सिसकियों को मुकम्मल आज़ादी दे दी। वो रोए यहाँ तक कि उसकी आंखें सूज। अगले दिन सुबह होते ही घर में एक नई बहस शुरू हो गई। मारूश की माँ नाश्ते की मेज पर खड़ी हाथ नचाते हुए बोल रही थी, मैंने फैसला कर लिया है, अब एक दिन भी उस घर में नहीं रहूंगी। न मेरी बेटी यहाँ खुश है, न मैं। ये घर हमारी इज्जत के लायक नहीं। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पूरा घर जाग गया। सास, ससुर, हती की नौकरानी भी दरवाजे से झांकने लगी। ईमान पास वाले कमरे से बाहर आई तो मारोश की माँ ने उसे देखते ही तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, लो आ गई असल वजह, उसकी वजह से ही सब कुछ खराब है। ईमान के कदम वहीं रख गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके सीने पर मुट्ठी भींच दी हो। सास ने फौरन जवाब दिया, बीबी ये लड़की तुम्हें क्या कहती है? हमेशा घर के काम करती है, कभी जबान नहीं खोलती, तुम हर बात उसी से जोड़ देती हो। मगर मारोश की माँ नहीं रखी, जबान नहीं खोलती मगर अपनी मौजूदगी से जहर घोलती है। मेरा दामाद पहले उसकी तरफ देखता था, अब बेटी की तरफ है तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईमान के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसके लिए ये इल्ज़ाम सबसे ज्यादा तकलीफ दह था। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। ये सब सुनकर शाहवेर भी अपने कमरे से बाहर आ गया। मारोश की माँ ने फौरन उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, बेटा तुम खुद बताओ, क्या तुम इस घर में खुश हो? यहाँ औरतें तुम्हारी बीवी को कबूल करती हैं, तुम इस माहौल में कब तक रहोगे? शाहवेर ने एक लम्हा ईमान की तरफ देखा, सिर्फ एक लम्हा, मगर वो लम्हा ईमान के लिए उम्मीद और खौफ दोनों का मिलाप था। मगर फिर अगले ही लम्हे उसने नजरें फेर लें और बोला, मैं ठीक कह रही हैं, यहाँ रोज झगड़े होते हैं, मुझे लगता है हम किसी और जगह रहें तो बेहतर होगा। ईमान का दिल जैसे एकदम जमीन में धंस गया। वो धीमे कदमों से वापस मुड़ गई, मगर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जानती थी कि मोहब्बत तब तक कायम रहती है जब तक एक दूसरे की मौजूदगी अहमियत रखती है। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि शाहवेर की नज़र में इसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। दिन गुजर गया मगर ईमान का दिल नहीं संभला। रात को वो चुपके से छत पर चली गई। हल्की हवा चल रही थी मगर उसके अंदर का दर्द इस हवा से कहीं भारी था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से बोला, मैं कब तक इस घर में अपनी सांसों का हिसाब देती रहूंगी? कब तक अपने वजूद को साबित करती रहूंगी? अगर मेरा होना ही मसला बन गया है तो मैं खुद को इस मसले से निकाल दूंगी। उसी लम्हे सांस उसके पीछे आ गए। उन्होंने ईमान को रोते देखा तो दिल कट कर रह गया। वो आगे बढ़ें और उसे गले लगाकर बोलें, बेटी मैं दिल से कहती हूँ, अगर हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं तो खुद को इस घर की भेंट मत चढ़ाओ। जो फैसला करना है हिम्मत से करना, और याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सास की आवाज़ टूट रही थी, जैसे वो खुद भी इन हालात से थक चुकी हूँ। दूसरी तरफ आसिफ साहब के घर में आज बेहद बड़ी खुशखबरी मिली। अनबर के प्रोजेक्ट को न सिर्फ मुल्की सतह पर सराहा गया बल्कि इन्हें बैरून मुल्क आने की दावत भी मिली। घर में जश्न का ऐसा समा था कि हर फर्द खुशी से दमक रहा था। अनबर को गले लगाकर उसकी माँ ने कहा, बेटा अल्लाह ने तेरे सब्र का फल यूं दिया है कि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। आसिफ साहिब ने फख्र भरे लहजे में कहा, अनबर ने दुखा दिया है कि औरत अगर मेहनत करती रहे तो पूरी दुनिया उसकी कदमों तले हो सकती है। वहाँ खुशियों की बरसात थी और ईमान की जिंदगी में साए गहरे होते जा रहे थे। अगले दिन सुबह घर गैर मामूली हद तक खामोश था। वो खामोशी जिसमें तूफान की चापें सुनाई देती हैं। सास, ससुर और बाकी घर वाले अपने अपने कामों में लगे थे, मगर हर चेहरे पर थकन, उलझन और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, जैसे हर कोई जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ईमान ने आंखों की सोजन छिपाने के लिए चादर का कोना चेहरे पर रख लिया। वो किचन में चाय बनाने गई मगर हाथ बार बार कप से फिसल रहे थे। उसकी अंदरूनी
हालत इतनी बोझल थी कि उसका वजूद भी थकामांदा महसूस हो रहा था। उसी दौरान शाहवीर नीचे आया। कदमों की आहट सुनकर ईमान ठिठक गई। दिल ने एक बार फिर उम्मीद की छोटी सी रोशनी जलाई कि शायद आज वो उससे बात करे, शायद दिल की कोई गिरह खुले, शायद वो उसे रोक ले। मगर शाहवीर सईदा मेज तक आया, मोबाइल पर नजरें जमाए, पानी का गिलास उठाया और बगैर ईमान की तरफ देखे वापस चल दिया। ईमान ने थामने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही रुक गई। ये सर्द महरी उसके लिए मौत से बदतर थी। इसी लम्हे मारुश की माँ नीचे उतरी और घर वालों को देखते ही बोली, मैंने अपनी बेटी का सामान पैक कर दिया है, आज ही हम ये घर छोड़ देंगे। यहाँ रहकर न मेरी बेटी को इज्जत मिल रही है न सुकून। सास ने बर्दाश्त करते करते आज तंग आकर जवाब दिया, बीबी आप लोगों ने खुद इस घर में आग भड़काई है, हर बात में इल्जाम, हर बात में बहस, आखिर ये घर कब तक बर्दाश्त करे? मारोश की माँ ने हकारत से कहा, आई बर्दाश्त? ये सब इस ईमान की वजह से है। उसकी मौजूदगी ने मेरी बेटी की जिंदगी अजीर्ण कर दी है। ईमान के कदमों के नीचे जैसे जमीन हल गई। वो कभी किसी के लिए मसला नहीं बनी थी, मगर आज वही सबके सामने मसला बना दी गई। शाहवीर भी ये शोर सुनकर बाहर आ गया। मारोश की माँ ने फौरन उसकी तरफ रुख किया, बेटा आप खुद बताएं, क्या आप इस माहौल में रह सकते हैं? ये लड़की, उसने ईमान की तरफ उंगली उठाते हुए, आपकी जिंदगी को मुसलसल बिगाड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून आए तो उसके साथ रहना छोड़ दें या हमें किसी और जगह ले जाएं। साथ खड़ी मारोश आंसू बहाते हुए बोई, शाहवीर मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ हर रोज घर का कोई ना कोई मसला उठ खड़ा होता है। ईमान ने बेअख्तियार शाहवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो कभी उसका साथ देगा या आज भी खामोश खड़ा देखता रहेगा? शाहवीर ने कुछ लम्हे ईमान को देखा, लेकिन वो नजर भी हचकचाहट और सर्दी से भरी थी। फिर उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, मैं ठीक कह रही हैं, अगर उस घर में रहकर इतनी मुश्किलें हो रही हैं तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ये जुमला ईमान के दिल पर आखिरी ज़र्ब था। सुस्त-सिसकर सास ने कहा, बेटा तुम अलग होने की बात कर रहे हो, घर छोड़ना मसले का हल नहीं। मगर शाहवीर ने सर झटक दिया, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ईमान के हाथ से ट्रिगर गई। चाय के छींटे फर्श पर फैल गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी उम्मीदें बिखर कर रह गईं। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठकर दिल थाम लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती चीरकर उसकी सांसें निकाल रहा हो। उसने अपने आप से कहा, शायद मेरा यहाँ रहना वाकई सबके लिए मसला बन चुका है। तो ठीक है, मैं खुद ही सबके लिए ये मुश्किल ख़त्म कर देती हूँ। वो उठ खड़ी हुई, अलमारी खोली और अपना दुपट्टा संभाला कर बैग निकालने लगी। ईमान जब ससुराल के दरवाजे में दाखिल हुई तो उसके अंदर एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कदम पत्थरों से बंधे हों। दरवाज़ा खुलते ही उसे घर में फैले गैर मानुस खामोशी ने चौंका दिया। पहले वाला वो शोर, वो जिंदगी, वो हंसी सब जैसे कहीं गायब हो चुके थे। लेकिन ऊपर के कमरे से मारुश की बुलंद आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। वो कुछ मुतालबात कर रही थी, शायद गुस्से में चीख भी रही थी। ईमान ने बेअख्तियार आ भरी। वो जानती थी कि ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा और न ही शाहवीर पहले जैसा है। शाहवीर ने जब उसे देखा तो पल भर को खामोश हो गया, मगर फिर फौरन नजरें चरा लें, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास तो हो, मगर अना की दीवार ने उसे जकड़ रखा हो। ईमान के दिल पर बोझ और बढ़ गया। वो धीरे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन पीछे से मारुश की झंझलाहट भरी आवाज़ फिर सुनाई दी, अम्मी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बार बार ठिकाना बदलना मेरे बस की बात नहीं। शाहवीर को भी यही चाहिए कि हम इसी घर में रहें। ये सुनकर ईमान का दिल जैसे एक लम्हे को रख गया। उसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि शाहवीर के फैसलों में उसकी कोई जगह बाकी नहीं रही। वो दरवाजे के करीब खड़ी रही, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे यकीन था कि उसका वजूद शाहवीर के लिए मुश्किल नहीं रहा, बल्कि शायद बोझ बन चुका है। नीचे आसिफ साहिब और अनबर की गुफ्तगू की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों अपने कारोबार की कामयाबी पर खुश थे, लेकिन साथ ही ऐमान की हालत के लिए फिक्रमंद भी। अनबर ने धीमी आवाज में कहा, आसिफ मुझे डर है कि ऐमान ज्यादा देर इस माहौल में रह नहीं पाएगी। वो बहुत कुछ सह चुकी है। आसिफ साहिब ने संजीदगी से सिर हिलाया, हाँ, और शाहवीर ने भी खुद को अजीब रास्ते पर डाल दिया है। लेकिन देखते हैं, शायद वक्त बदल जाए। ईमान ने उनकी बातें सुनकर दिल में सोचा कि शायद वो खुद ही अब वक्त बदलने के इंतजार में मजीद नहीं रह सकती।
उसके अंदर कोई चीज खामोशी से टूट रही थी, ऐसी टूट फूट जो आवाज के बगैर होती है मगर अंदर की दुनिया को तबाह कर देती है। इसी दौरान ऊपर शदीद तकरार की आवाज आई, मारोश और उसकी माँ की। मारोश की माँ शाहवीर के सामान उठाने पर जोर दे रही थी, जबकि मारोश बज़द थी कि वो कहीं नहीं जाएगी। इस शोर ने ईमान के दिल को मजीद चिढ़ डाला। आज उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़ाइयाँ, ये तमाशे, ये चीखें उसका मकदर नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो खामोश खड़ी थी, क्योंकि रिश्ता अभी सांस ले रहा था, चाहे कितनी ही तकलीफ दह सांस क्यों न हो। ईमान की आंखों में हल्की नमी तीर गई। उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसकी आजमाइश का वक्त अपनी आखिरी हदों तक जा पहुंचा है, और शायद अब उसे खुद फैसला करना होगा कि कब तक वो उस सब को बर्दाश्त करेगी। ईमान चंद लम्हे वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। ऊपर के कमरों से आती आवाजें, नीचे लाउंज में फैला हुआ तनाव और शाहवीर की बदलती हुई खामोशियां, सब कुछ मिलकर उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान बर्पा कर रहे थे जिसे वो न रोक सकती थी और न बर्दाश्त। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और बैठक की तरफ बढ़ गई, मगर हर कदम भारी होता जा रहा था। वो जैसे ही सोफे पर बैठी, उसकी सांस वहां आ गई। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी दोनों शामिल थीं। बेटा, तुम आ गई? ईमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर झुका दिया। जी उम्मा। लेकिन उस मुस्कुराहट में थकन और दुख साफ महसूस हो रहा था। वो जैसे ही सोफे पर बैठी, उसकी सांस वहां आ गई। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी दोनों शामिल थीं। बेटा, तुम आ गई? ईमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर झुका दिया। जी उम्मा। लेकिन इस मुस्कुराहट में थिकन और दुख साफ महसूस हो रहा था। सास उसके पास बैठ गए और नरमी से बोले, मैं जानती हूं कि यहाँ हालात ठीक नहीं और सबसे ज्यादा तुम पर बोझ पड़ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूं कि शाहवीर को समझाऊं, मगर मारोश ने तो उस पर जादू कर रखा है। न जाने किस तरह उसे अपने काबू में क्या हुआ है। ईमान ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि बात सिर्फ जादू या असर की नहीं, शाहवीर खुद भी उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापसी आसान नहीं होती। उसने अपनी तरजीहात बदल ली थीं और ईमान अब उन तरजीहात में कहीं भी नहीं थी। ऊपर से एक जोर की आवाज आई कुछ करने की, फिर मारोश की चीख, अम्मी मैं कह रही हूं मुझे उस घर से नहीं जाना। ये घर मुझे पसंद है, समझ नहीं आता आपको? ईमान के दिल ने जैसे धड़कना भूल सा दिया। वो धीरे से उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने शाहवीर को देखा। वो परेशान था, मगर इस परेशानी में ईमान के लिए कोई जगह न थी। ओ अपनी उलझनों मैं उलझा हुआ था। कभी मारोश की तरफ झुक रहा था, कभी माँ को मना रहा था, और ईमान वो उसके लिए सिर्फ एक खामोश साया बनकर रह गई थी। ईमान अपने कमरे में दाखिल हुई तो आंखें खुद बखुद नम हो गईं। ये वो कमरा था जहां कभी मोहब्बत के रंग थे, जहां कभी ख्वाब सजे थे, मगर अब हर चीज में बेरंग सी खामोशी थी। उसने आहिस्ता से बिस्तर पर बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस रिश्ते की जरूरत हूँ या मैं सिर्फ दुख सहने के लिए रह गई हूँ? नीचे लाउंज में आसिफ साहब और अनबर की गुफ्तगू अब भी जारी थी। अनबर ने कहा, आसिफ हमने अपना कारोबार मुश्किल वक्त में संभाला और शुक्र है अल्लाह का, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर ईमान उसकी जिंदगी तो अब भी उसी गिरदाब में फंसी हुई है। हम कामयाब हो गए, लेकिन वो अब भी तकलीफों में है। आसिफ साहब ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि फैसला ईमान को खुद करना होगा। कोई उसकी जगह उसके दिल का बोझ नहीं समझ सकता। ईमान ने उनकी बातें दौड़ से सुनी और पहली बार उसे लगा कि शायद सच यही है। अब फैसला करना इसके हाथ में है। अगर वो अपने आप को मजीद तोड़ती रही तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, न इज्जत, न हिम्मत, न दिल। उसने नम आंखों से खिड़की खोली। हुआ का झोंका अंदर आया और उसके चेहरे से आंसुओं की नमी हटा गया। ईमान ने हल्की मगर मजबूत आवाज में खुद से कहा, मुझे बदलना होगा वरना मैं खो जाऊंगी। और शायद ये उसके लिए नई शुरुआत का पहला कदम था, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ईमान खिड़की के पास खड़ी थी, मगर उसकी नजरें कहीं दौर खला में जमी हुई थीं, जैसे वो सामने दिखाई देने वाले मंजर को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के धंधलाए हुए पल देख रही हो। उसके जहन में एक एक करके वो तमाम लम्हात गर्दिश करने लगे जब इसने उस घर के लिए, इस रिश्ते के लिए और खुसूसन शाहवीर के लिए अपनी ख्वाहिशें और अपनी खुशियां कुर्बान की थीं। उसे याद आया कि कभी वो किस कदर मोहब्बत और यकीन से उस रिश्ते को थामे बैठी थी, मगर आज वही रिश्ता उसे अंदर से खोखला कर रहा था। कमरे की खामोशी में अचानक कदमों की चाप सुनाई दी।
वो मुड़ी तो देखा कि शाहवीर दरवाजे में खड़ा है। उसके चेहरे पर परेशानी थी, मगर वो परेशानी ईमान के लिए नहीं थी। ईमान ने जवाब देने से पहले एक लम्हा खुद को संभाला। हाँ, आ गई हूँ, उसने इतना ही कहा, मगर उसके लहजे में बहुत कुछ छिपा हुआ था। शाहवीर ने कुछ कहना चाहा मगर फिर रख गया, जैसे अल्फाज के आगे उसकी अपनी नाहली खड़ी हो। वो ऊपर थोड़ा मसला चल रहा है, तुम परेशान ना होना, मैं उसे संभाल लूंगा। ईमान ने हल्की सी तलख मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश की। मसला? वो आहिस्ता से बोली, ये तो बहुत उरसे से चल रहा है शाहवीर। मैं कब कह रही हूं कि तुम नहीं संभालो, सिर्फ ये कि कभी कभी लगता है मेरे संभालने के दिन शायद खत्म हो गए हैं। शाहवीर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस पलट गया, जैसे इस मुकालमे का सामना करने की ताकत इसमें नहीं थी। ईमान के दिल में एक और दरार पड़ गई। इसी दौरान बाहर लाउंज में अनवर की खुशी भरी आवाज गूंज रही थी। आसिफ, देखें, हमें बड़ी पार्टी का ऑर्डर भी मिल गया है, अब काम ठीक से चल रहा है। आसिफ साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाल्लाह, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने हिम्मत ना हारी, उसी लिए आज कामयाबी हमारे कदम चूम रही है। ईमान ने यह सुना तो इसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। एक तरफ लोग मेहनत, जज्बे और कोशिश से जिंदगी बदल रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद थी जो रिश्ते की चुक्की में फंसकर रह गई थी, बगैर किसी मंजिल के, बगैर किसी समत के। वो धीरे से बस्तर पर बैठ गई। उसके आंसू अब खामोशी से उसके गालों पर बहने लगे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत इतनी बेरंग हो सकती है, और जिस इंसान के लिए वो सब कुछ छोड़ आई थी, वही इंसान एक दिन उसे यूं गैर महसूस कर देगा, जैसे उसका वजूद कोई अहमियत ही न रखता हो। ईमान ने अपने दिल पर हाथ रखा। वो धड़क तो रहा था, मगर जैसे टूट चुका हो। उसने खुद से पहली बार खुलकर कहा, मैं जीते जी जान नहीं देना चाहती। मुझे अपने आप को दोबारा तलाश करना होगा, वरना मैं खत्म हो जाऊंगी। बिल्कुल खामोशी से। और शायद यही उसकी अंदरूनी बेदारी का वो लम्हा था जिसके बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। ईमान बस्तर पर बैठी हुई थी, मगर उसका ज़हन मुसलसल भटक रहा था, जैसे उसके अंदर बेशुमार सवालों की गूंज हो, जिनमें से किसी का भी जवाब अभी तक वाज़ेह न हो। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कीं, मगर बंद आंखों के पीछे भी उसे सुकून नहीं मिला। सर्फ यादों का शौर, दुख का बोझ और नाकामी का एहसास। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल थक चुका हो, इतना थक चुका कि अब मजीद किसी जख्म का बोझ उठाने की सकत नहीं रही। दफातान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये अनवर थी। वो दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर आई और ईमान के चेहरे की हालत देखकर ठटक सी गई। ईमान, बेटा, तुम ठीक हो? उसने आगे बढ़कर ईमान के हाथों पर हाथ रख दिया। ईमान ने होंठों पर मसनूई सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट आंखों तक न पहुंच सकी। मैं ठीक हूँ भाभी, बस थोड़ा थक गई हूँ शायद। अनवर ने गहरी सांस ली। थक तो तुम बहुत पहले गई थी ईमान, बस तुमने कभी माना नहीं। उसका लहजा नर्म मगर हकीकत से भरपूर था। मैं देख सकती हूँ कि ये घर, ये हालात, ये रोज रोज के तमाशे तुम्हें अंदर से तोड़ रहे हैं। ईमान की आंखें नमी से भर गईं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि ऊपर से फिर मारोश की आवाज गूंजी। मैं कह रही हूँ शाहवीर नीचे आए, मैं उससे अभी बात करना चाहती हूँ। ईमान ने आंखें बंद कर लें। ये शोर अब उसके अंदर तक उतरता जा रहा था। ईमान शाम के सन्नाटे में अपनी सोचों में गम थी। वो खिड़की के किनारे खड़ी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों की सड़सड़ाहट एक अलग सुकून दे रही थी, मगर उसके दिल के अंदर का तूफान किसी भी सुकून को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो अपने दिल की हर धड़कन को महसूस कर रही थी। हर धड़कन एक सवाल की मानिंद थी, क्या मैं वाकई इस रिश्ते के लिए ज़रूरी हूँ? क्या शाहवीर के दिल में मेरी कोई अहमियत बाकी है? ये सवालात उसे अंदर से घेरे हुए थे, और हर जवाब जो वो सोचने की कोशिश करती, बस खामोशी और तलखी के सिवा कुछ न देता। कमरे में दरवाजे की हल्की सी चुपचुपी आवाज से उसने अपना ध्यान खींचा। शाहवीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर थिकन और बेजारी की छाप थी, मगर वो कोई बात करने के काबिल नहीं था। उसकी आंखें ईमान की तरफ उठी, मगर अंदर की सरद मेहरी ने हर लम्हे की उम्मीद को कुचल दिया। ईमान, तुम यहाँ हो? उसकी आवाज में मामूली हचकचाहट थी, मगर कोई गर्मजोशी नहीं थी। ईमान ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ शाहवीर, मैं यहाँ हूँ। उसके लहजे में सख्ती और पख्तगी थी, मगर अंदर से वो लर्ज रही थी। वो जानती थी कि अब कोई बात, कोई अल्फाज इस रिश्ते को बचा नहीं सकते। उस लम्हे ईमान ने खुद से एक फैसला किया।
उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। वो समझ गई कि अब उसे सिर्फ अपनी हिफाजत और अपनी इज्जत के लिए सोचना होगा। अगर उसका वजूद ही घर में मसला बन गया है तो उसे खामोशी और इज्जत के साथ पीछे हटना होगा। ऊपर मारुश की आवाज़ें गूंजें। उसकी माँ जोर दे रही थी कि सब कुछ छोड़कर चले जाएं, जबकि मारुश हटकर न सुन रही थी। ये शोर ईमान के दिल को चीर रहा था, मगर उसने अपने आप को काबू में रखा। उसने आंखों से आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत किया। नीचे आसिफ साहब और अनबर की गुफ्तगू जारी थी। अनबर ने नर्म लहजे में कहा, ईमान, कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना पड़ता है। सुकून हासिल करना भी हक है और तुम्हें ये हक है कि तुम अपनी इज्जत और दिल की हिफाजत करो। ईमान ने उस बात को दिल में बिठाया। वो जान गई थी कि अब उसे खुद अपनी जिंदगी का कंट्रोल संभालना होगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो। उसने खिड़की के किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। शाम की हल्की सुनहरी रोशनी में अपने अंदर एक नया हौसला महसूस किया। ये लम्हा ईमान के लिए तब्दीली और नई शुरुआत का पहला कदम था। एक लम्हा जब उसने अपने दिल की आवाज़ को सबसे ऊपर रखा, अपनी इज्जत को अपनी तरजीह बनाया और अपनी हिम्मत को पहचाना। ये वो लम्हा था जब वो खामोशी से अपने लिए नई जिंदगी की बुनियाद रख रही थी। ईमान रात के सन्नाटे में कमरे के सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नज़रें कहीं दो रुफ़िक में जमी हुई थीं। बाहर की नरम हुआ और आसमान पर चमकती हल्की रोशनी उसे सुकून देने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दिल के अंदर का तूफान कहीं ज्यादा शदीद था। वह मुसलसल सोच रही थी कि क्या वाकई उसका यहाँ होना सबके लिए मसला बन गया है? क्या शाहवीर के दिल में उसकी कोई अहमियत बाकी रह गई है, या वो बस एक गैर महसूस साया बन चुकी है? ये ख्यालात उसके दिमाग में घूम रहे थे और हर लम्हा उसे ज्यादा दिखी और थका हुआ महसूस करवा रहा था। इसी दौरान दरवाजे की हल्की सी खटखट ने उसका ध्यान खींच लिया। शाहवीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर थिकन और बेजारी छाई हुई थी, मगर वो ईमान की तरफ नजरें उठाने के काबिल भी नहीं था।